Hello everyone, I am Ritika Zulkar, Assistant Professor IT Department. So in the course of machine learning, we started our Unit 4. Okay, so Unit 4 is based on tree-based and probabilistic model. So where we started the tree-based model. So in previous video, we already discussed about what is the tree-based, what is the decision tree, how the decision tree used, the working of decision tree and the algorithm of decision tree, and what are the terminologies to create the decision tree. Okay, so in the decision tree algorithm, if we want to create a decision tree, okay, so in the algorithm we require the attribute selection measure. Okay, based on this attribute selection measure we create our decision tree. Okay, so first we discuss what is the attribute selection measure. So while implementing a decision tree, the main issue arises that how to select the best attribute for the root node and for the sub node. Okay, if we are having the root node, okay, so for that particular root node, how to find out the sub nodes for that particular root node. Okay, so for that we create the attribute, okay, which is the best attribute. Okay, so finding the best attribute value by using this attribute selection measure. So to solve such type of problem, there is a technique which is called as the attribute selection measure or a ASM. So by this measurement, we can easily select the best attribute for the nodes of the tree. There are two popular techniques of this attribute selection measure. First is the information gain and the second one is the Gini index. Okay. So here first we discuss what is the information gain. Information gain is the measurement of changes in entropy after the segmentation of a dataset based on the attribute. Based on an attribute, we have to find out the entropy and the information gain. So it calculates how much information a feature provides us about a class. So according to the value of information gain, we split the node and build the decision tree. Okay, जो भी हमें वैल्यू मिलेगी इंफॉर्मेशन गेन से पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए, सो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन गेन वैल्यू वी स्प्लिट द नोड एंड बिल्ड द decision tree. So the decision tree algorithm always tries to maximize the value of information gain, and a node or a attribute having the highest information gain is split first. जिसकी highest information gain value होगी वो हम पहले split करेंगे. Okay, so consider one example. If you are having the root node A and the sub nodes are B, C, D, E, F. Okay, so for that particular root node A, how we split the data into the two parts. Okay, so रूट नोड के लिए हम फाइंड आउट करेंगे इंफॉर्मेशन गेन फॉर्मूला. रूट नोड के कोई कितने एट्रीब्यूट से बी सी डी ई एफ. ओके, सो रूट नोड के जो भी एट्रीब्यूट है उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे इंफॉर्मेशन गेन फॉर द बी, इंफॉर्मेशन गेन फॉर सी अल्सो, इंफॉर्मेशन गेन फॉर डी अल्सो. सो उसमें से जो भी नोड्स है उसमें से हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू जिसकी होगी उसको हम पहले स्प्लिट करेंगे. Okay, so how we find out the information gain? By using this formula, information gain is equal to entropy S minus weighted average into the entropy for each feature. Okay, another equation is what? Information gain feature is equal to entropy for data set minus entropy feature. Example here. So here we have to find out the information gain. S is what? Our root node and A is our sub नोड. ओके, सब पार्ट. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ए नोड को स्प्लिट कर रहे हैं. उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, उसकी इंफॉर्मेशन गेन वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एंट्रोपी एज. जो भी हमारा होल सेट है उसके लिए हम एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे. देन द समेशन ऑफ वैल्यू ए, जो भी ए की वैल्यू है उसके लिए हम एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे. सो एस विल divided by the set of S and entropy SV. Okay, so next part we discuss how we find out the entropy S and entropy SV and what is the formula for this entropy. Okay, so let us see here. Entropy is what? Entropy is the measure of uncertainty of random variables. So it characterizes the impurity of an arbitrary collection of examples.
So the higher the entropy, more the information content. जिसकी entropy value ज़्यादा होगी वो information content ज़्यादा create करेगा. Okay. So when we use a node in the decision tree to partitioning the training instances into the smaller subset, the entropy changes every time. The information gain is used here. So what is the formula for the entropy? So entropy S is equal to minus PS log 2. P is what here? Probability. In given example, the probability of S कितने हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे log probability of S base 2. ये क्या है? log का base 2 है. Minus P probability of no कितने हैं हमारे केस में और उसका log probability of no base 2. ये क्या है? यहाँ पे base 2 है. Okay. So where the S is the total number of samples, P of S is what probability of S, and P of no is what probability of no. Okay. So see here how we find out the entropy. First for the set X, यहाँ पे एक set दिया है, उसके अंदर total instances कितने हैं? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. उसमें से instances of B कितने हैं? 5 और instances of A कितने हैं? 3. Okay. So we have to find out the entropy for whole set X. Okay, how we find out? Minus whole. So yes और no. यहाँ पे yes और no है, but यहाँ पे क्या है? B और A. So first we have to find out the A. Okay, so probability कैसे find out करेंगे? A के लिए probability of 3 A and whole set 3 by 8 log base 2 3 by 8 plus B के लिए अभी हम चेक करेंगे 5. Okay, 5b divided by whole set कितना है? 8 log 5 by 8 base 2. ओके, सो यहाँ पे देखो फॉर्मूला माइनस 3 बाई 8 कितना आता है? 0.375 इंटू यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे log of 3 by 8 divided by log of 2. So we get the value is minus 1.415. ओके, आप लोगों को पता होगा कि लॉगरिथमिक का फॉर्मूला log ऑफ बी ए अगर होता है तो हम पहले क्या करेंगे? log a फाइंड आउट करेंगे और जो बेस है उसको डिवाइड करके log b फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो log 3 by 8 डिवाइडेड बाय log 2 वी गेट दिस वैल्यू प्लस 5 by 8 कितना आएगा? 0.625 इंटू सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो log ऑफ 5 by 8 डिवाइडेड बाय log 2. So we get the minus 0.678. इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे so we get the entropy for this whole set is what? 0.954. Okay, so here we calculate the entropy. जो भी हमें एंट्रोपी मिलेगी उसको हम ये इंफॉर्मेशन गेन के अंदर पुट करेंगे एंड सिमिलरली फॉर वैल्यू ए के लिए फाइंड आउट करेंगे और उसकी एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे बस मैंने एक्सप्लेन किया है कि एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो सी हियर we discuss one example for the information gain. Okay, and how to create the decision tree based on this information gain value. Okay, so where we have one table for each column contain the day, outlook, temperature, humidity, wind and plate. Okay, so यहाँ पे days कितने हैं? D1 to D14. so यहाँ पे outlook, temperature, humidity and wind, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, ये क्या है यहाँ पे? एट्रीब्यूट. सो वी कंसिडर दीज आर दी 4 एट्रीब्यूट. ओके, एंड प्ले टेनिस इज व्हाट? अवर solution. Okay, so based on this attribute we will check no conditions and yes conditions. Okay, so see here attribute first क्या है? outlook, second is temperature, humidity and wind. so we have to create the decision tree for this particular problem. so attribute outlook के लिए हम पहले चेक करेंगे attribute outlook, values outlook, उसके values क्या है? outlook के values जैसे मैंने यहाँ पे बताया था information gain क्या करेगा? entropy S, और जो भी S के values होंगे वो होंगे यहाँ पे. okay? Similarly here values of outlook क्या है यहाँ पे? sunny, overcast and rain. so these are the 3 values of this outlook. so first we have to find out the entropy for whole set. S equal to
S इक्वल टू यहाँ पे 9 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव है। अगर मैं होल सेट कंसिडर करती हूँ तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यस है, 1 2 3 4 5 नो है। सो एंट्रोपी एस कैसे फाइंड आउट करेंगे? पॉजिटिव और निगेटिव के लिए -9/14 log base 2 9/14 -5/14 log base 2 5/14. So we get this value 0.94. Okay. Similarly for हम फाइंड आउट करेंगे हर एक के लिए। इंफॉर्मेशन गेन के अंदर क्या है? फॉर्मूला है एंट्रोपी एस एंड एंट्रोपी फॉर द होल वैल्यू सनी, ओवरकास्ट एंड रेन। ओके, सो हमें सनी के लिए फाइंड आउट करने हैं। सो जहाँ पे सनी है उसके नो कितने हैं और यस कितनी है? यहाँ पे सनी नो 1 2 देन 3। ओके, सो नो कितने हैं? 3 निगेटिव। और पॉजिटिव कितने हैं सनी के लिए? यहाँ पे सनी यस एंड सनी यस 2। ओके, 2 + 3 माइनस, तो उसके लिए हम एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे। -2/5 log base 2 2/5 -3/5 log base 2 3/5. So we get the value is a 0.971. Similarly for overcast, so overcast के अंदर yes कितने हैं? 1 2 3 and 4. ओके, 4। और नो कितने हैं? देयर इज नो नेगेटिव वैल्यूज, 0 माइनस। ओके, सो एंट्रोपी एस ओवरकास्ट क्या होगा? -4/4 log 4/4 -0/4। सो ये वाले केस में देखो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0, और ये भी टर्म क्या हो जाएगा? 0। सो अगर आपको एमसीक्यू रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछते हैं सो वो वाले केस में अगर आपको वैल्यूज 4 पॉजिटिव है बट 0 निगेटिव आते हैं, या फिर 0 पॉजिटिव और 4 निगेटिव आते हैं, सो वो वाले केस में आपके एंट्रोपी इज ऑलवेज 0। ओके, अंडरस्टूड? सो 4 अगर कोई भी एक वैल्यू 0 आती है सो वहां पे पूरा हमारा वैल्यू क्या बनेगी? 0 बनेगी। ओके, अगर हमें यहाँ पे 4 और 0 निगेटिव है तो सो दिस इज अ एस ओवरकास्ट। देन एस रेन के लिए, अभी रेन के लिए चेक करेंगे। रेन यस 1 2 3। ओके, सो रेन 3 पॉजिटिव दैट इज यस एंड नो 2 नेगेटिव। सो एंट्रोपी एस -3/5 log base 2 3/5 -2/5 log base 2 2/5 is equal to 0.971. ओके, सो यहाँ पे हमने पहले क्या किया? एंट्रोपी फाइंड आउट की फॉर होल सेट, then sunny, overcast and rain. Okay, then we can apply the information gain formula. So information gain का formula क्या है? S, outlook. attribute कौन सा है हमारा? outlook. So entropy S माइनस जो भी आउटलुक है उसके वैल्यूज क्या है? सनी, ओवरकास्ट, रेन। हर एक के लिए हम चेक करेंगे SV डिवाइडेड बाय S, एंट्रोपी SV. ओके, सो सी हियर गेन इक्वल टू एंट्रोपी एस माइनस, अभी देखो यहाँ पे एस वी क्या है हमारा? यहाँ पे एस वी के अंदर सनी के लिए चेक करेंगे। सबसेट क्या है उसका? 5। एस मीन्स व्हाट? होल सेट की वैल्यू कितनी है हमारे? डेज कितने हैं टोटल? 14। एंट्रोपी एस सनी, यहाँ पे एंट्रोपी सनी। अभी नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी? ओवरकास्ट के टोटल सेट कितना है? 4। सेट कितना है टोटल हमारा? 14। एंट्रोपी हम चेक करेंगे ओवरकास्ट के लिए। सिमिलरली थर्ड वाले केस कौन सी है? क्योंकि हम समेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, रेन होल सेट क्या है? 3 + 2 मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 14, एंट्रोपी एस रेन। ओके, एस रेन की वैल्यू। सो हम यहाँ पे सब वैल्यूज पुट करेंगे। एंट्रोपी एस कितना आया है हमारा? 0.94, देन 5/14 ये होगा एज इट इज। एस सनी कितना है? 0.971 -4/14 ये कितना है वैल्यू? 0 -5/14। सो रेन की वैल्यू कितनी है? 0.971। सो वी गेट दिस वैल्यू 0.2464 फॉर द आउटलुक। ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट, अभी यहाँ पे हमने क्या किया? आउटलुक के लिए चेक किया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर। एट्रीब्यूट हम टेम्परेचर कंसीडर करेंगे। ओके, सो उसके लिए वैल्यूज, अभी टेम्परेचर जो एट्रीब्यूट है उसके वैल्यूज क्या है? हॉट, माइल्ड एंड कूल। ओके, सो पहले हम अगेन ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि जो होल सेट है हमारा वो 95 का है, सो एज इट इज रहेगा।
अभी हम एस हॉट के लिए चेक करेंगे। हॉट के लिए यस कितनी है और नो कितनी है। सो 1 देन 2, 2 हॉट पॉजिटिव देन 2 नेगेटिव, एंट्रोपी होंगी 1.0। एस माइल्ड के कितने, यस 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, 1 एंड 2। एस कूल के लिए 3 एंड 1, 1 2 3 एंड ओनली 1 इज अ नो। ओके, सो हर एक के लिए हम एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे की थी। ओके, अगेन फाइंड आउट द गेन वैल्यू एंट्रोपी एस माइनस 4/14। अभी यहाँ पे 4 कैसे आया, हॉट कितना है हमारा टोटल 2 + 2 4 एंड होल सेट कितना है 14 का, एंट्रोपी एस हॉट इज व्हाट 1। सिमिलरली फॉर -6/14, 4 + 2 is 6, whole set is 14, entropy S mile कितना है 0.91 and for the cool also. Okay, so for this S comma temperature gain value कितनी है 0.02। ह्यूमिडिटी के लिए सेम हम चेक करेंगे, उसके अंदर दो ही एट्रीब्यूट वैल्यूज है ह्यूमिडिटी के, हाई एंड नॉर्मल। सो हाई के लिए यस कितना है, नॉर्मल के लिए यस और नो कितने हैं वो फाइंड आउट किए, उसकी एंट्रोपी फाइंड आउट की एंड सेम गेन का फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके, सो यहाँ पे 3 थिंग्स थे 1 2 एंड 3, बट यहाँ पे वैल्यूज 2 है। सो यहाँ पे एस हाई एंड एस नॉर्मल के लिए हम यहाँ पे पुट किया है वैल्यूज। ठीक है, देन लास्ट वाली क्या है, विंड, एट्रीब्यूट विंड। अभी इसके अंदर वीक एंड स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो सेम अभी ये वाले केस में देखो, अगर आप लोगों को एमसीक्यू टाइप में अगर शॉर्ट में आपको बताना है कि इसकी एंट्रोपी वैल्यू क्या होगी, सो अगर आपके केस में सेम पॉजिटिव वैल्यूज और सेम निगेटिव वैल्यूज आती है या फिर सेम यस और सेम नो आता है, सो इसके फॉर्मूले के अंदर -3/14 log base 2 3/14 माइनस अगेन उसके लिए भी सेम होगा -3/14 log base 2 3/14। सो वो वाले केस में हमारी एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी 1। अगर दोनों सेम है तो यस भी सेम है नो भी सेम है तो 1 आएगा। अगर ये वाले केस में ओनली एक पॉजिटिव और बाकी रिमेनिंग 0 है तो वो वाले केस में एंट्रोपी आएगा 0। ओके, एंड एस वीक के कितने हैं, वीक 6 एस है और 2 नो है, उसकी एंट्रोपी हमने अगेन एंट्रोपी एस कितना है टोटल 0.94, एंट्रोपी स्ट्रॉन्ग फाइंड आउट की और एंट्रोपी वीक फाइंड आउट की। ओके, सो दिस इज द एट्रीब्यूट फॉर वाइन। तो हम ऑल एट्रीब्यूट के गेन वैल्यू कलेक्ट करेंगे, जैसे कि आउटलुक की कितनी है 0.24, टेम्परेचर की कितनी है 0.02, ह्यूमिडिटी की कितनी है 0.15 एंड विंड की कितनी है 0.04। ओके, सी हियर। सो इसमें से अगर हमें डिसीजन ट्री क्रिएट करनी है, सो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट वैल्यू किसकी है यहाँ पे compared to all these four, 0.24 is the highest information gain value. Okay, 0.24 is the highest information gain value. Okay, so tree के अंदर हमारा रूट नोड क्या होगा अभी, आउटलुक, उसके वैल्यूज कौन से है, सनी, ओवरकास्ट एंड रेन। ओके, सो आउटलुक जो है उसका डेज D1, D2, D3 अप टू D14, 9 एंड 5 एज इट इज, सनी, ओवरकास्ट और रेन। सो सनी के अंदर अभी इसके अंदर सनी कहाँ पे है, D1, D2, D8, D9, D11, D1, D2, D8, D9, D11। ओवरकास्ट कहाँ पे है, D3, D7, D12, D13 एंड रेन कहाँ पे है, D4, D5, D6, D10, D14। ओके, एंड इसके जो वैल्यूज थे सनी के 2 एंड 3, सो ये भी एज इट इज रहेंगे जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। सनी 2 3, ओवरकास्ट 4 0 एंड रेन का 3 2। ओके, 3 2। तो यहाँ पे देखो यस मिला है हमें, नो कोई भी नहीं है ओवरकास्ट के लिए, तो इसके लिए हम नहीं चेक करेंगे, हमें क्या करना है, इसको यूज करना है, ये वाला और ये इसके आगे का सनी का नेक्स्ट सब पार्ट क्या होगा और रेन का नेक्स्ट सब पार्ट क्या होगा वो हमें चेक करना है नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ओके,
सी हियर, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, आउटलुक एक रूट नोड है, उसके बाद हमें सब नोड्स कौन से है वो चेक करना है। ओके, सो ये वाला एक रूट नोड सब पार्ट हम चेक कर सकते हैं या फिर ये वाला चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी ओवरकास्ट के लिए हमें मिला है यस। ओके, रिमेनिंग इज व्हाट, सनी साइड एंड रेन साइड, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द सनी साइड। ओके, सो उसके डेज कौन से है, D1 D2 D8 D9 D11। ओके, एंड 2 + 3। तो सनी के लिए जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 2 yes और 3 no है। ओके, so only we can consider this part। so ये डेज है, उसके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड और प्ले टाइम्स। ओके, अभी नेक्स्ट वाला एट्रीब्यूट क्या होगा हमारा, एट्रीब्यूट टेम्परेचर, एट्रीब्यूट ह्यूमिडिटी एंड एट्रीब्यूट विंड। सो वैल्यू के टेम्परेचर क्या होंगे, हॉट, मिल्ड एंड कोल्ड। सो एस सनी इज व्हाट, जैसे यहाँ पे देखो आउटलुक क्या मिला हमें, एट्रीब्यूट नोड मिला, उसके बाद हम उसको चेक कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो सनी है वो क्या होगा, उसका रूट नोड होगा एस सनी, जिसकी वैल्यू है 0.97। हॉट के लिए जैसे मैंने बताया था, कोई भी जो भी हमारे पास दो वैल्यूज है उसके जीरो अगर कोई भी आता है और रिमेनिंग जो भी वैल्यूज आती है सो हमें एंट्रोपी मिलेगी जीरो, बोथ सेम आता है सो 1 मिलेगा, कोई भी एक जीरो वैल्यू आती है सो एंट्रोपी फाइनली हमें क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। ओके, so we can find out the gain formula, information gain for S sunny, and for the temperature is what, we can apply the formula over here for 0.97 minus entropy H what क्या है यहाँ पे 2 divided by 5, total is what, not 14 here। okay, not 14, we have only the 5 days here। okay, 2 by 5 entropy hot S hot क्या होगा यहाँ पे 0, then 2 by 5 entropy S mild is what 1 and minus 1 by 5 entropy 1 by 5 means what 1 divided by total कितना है 5। okay, so we get this 0.570। again attribute for humidity also like this, only two values are here, high and normal। so यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है so एंट्रोपी क्या आएगा 0, यहाँ पे भी 0 है so यहाँ पे 0, अगर 2 2 आता है तो क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे 3 3 होता तो क्या होगा 1। we'll find out the information for S sunny, humidity 0.97 and wind के लिए भी सेम वैसे। ओके, सो सेम अभी हमें क्या मिले, सनी टेम्परेचर की वैल्यू, सनी ह्यूमिडिटी और सनी विंड की वैल्यू 0.01। सो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, ह्यूमिडिटी। वी कैन कंसिडर फ्रॉम द सनी ह्यूमिडिटी इज द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन गेन वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे हमने मार्क किया ह्यूमिडिटी। उसके दो वैल्यूज कौन से है, हाई एंड नॉर्मल। सो इसमें से हाई क्या है, नो, D1 D2 एंड D8 एंड नॉर्मल क्या मिला हमें यहाँ पे, यस यस, दैट इज D9 एंड D11। सिमिलरली फॉर दिस राइट साइड आल्सो रेन के लिए हम चेक करेंगे, जिसके डेज है D4 D5 D6 D10 एंड D14। रेन की वैल्यू एज इट इज रहेंगे 3+2। So again we can find out the values temperature, humidity and wind। so temperature का यहाँ पे यूज करेंगे, एंट्रोपी अलग होगी यहाँ पे 0, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला 1 + 1 आता है तो 1 होगी। so we get this value 0.0192। और ह्यूमिडिटी कितनी येस और नो है वो चेक करेंगे, एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे और उसको इंफॉर्मेशन गेन के अंदर पुट करेंगे। देन विंड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक के लिए। सो यहाँ पे मैक्सिमम चेक करना है। इस रेन साइड हमने चेक किया है, टेम्परेचर इज 0.01, ह्यूमिडिटी 0.01 एंड विंड इज 0.97। ओके, तो इसमें से मैक्सिमम इज व्हाट, विंड। सो इस रेन के लिए हम विंड को फर्दर यूज करेंगे, रेन को विंड को यूज करेंगे। इसके साइड्स कौन से है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, वैल्यूज कौन से है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग साइड क्या डिनोट कर रहा है, नो नो, हैविंग द डेज D6 एंड D14 एंड वीक वाली साइड क्या शो हो रही है, यस, हैविंग द डेज D4 D5 एंड D10, नो यस। ओके, सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। आउटलुक इज ओवर रूट नोड एंड ह्यूमिडिटी एंड विंड आर द ओवर सब नोड्स। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, नो, यहाँ पे हमें नो मिला, ये वाली साइड यस मिला है। ओवरकास्ट के लिए कोई भी नो वैल्यू नहीं है, ओके, ओनली यस वैल्यू। और रेन साइड विंड होगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वीक, उसके नो साइड और यस साइड। ओके, सो हम उसको, ये क्या है हमारा, बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन गेन वैल्यूज वी कैन फाइंड आउट द
or we can create the decision tree. Okay. सो अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है आउटलुक के अंदर, अगर सनी साइड है, सनी में से हमें नॉर्मल है तो हम चेक करेंगे यस, यस हमें मिला है सॉल्यूशन। आउटलुक सनी है और उसमें से हाई दिया है सो हमें मिलेगा नो। ओके, सो वी कैन फाइंड आउट द प्रॉपर आंसर्स फ्रॉम दिस डिसीजन ट्री। आउटलुक के अंदर ओवरकास्ट है, बस वो हमें क्या देगा, यस आंसर देगा। आउटलुक के अंदर रेन है, रेन के अंदर विंड कौन सा है, स्ट्रांग है या वीक है, वीक होता है तो यस। ओके, आउटलुक के अंदर रेन और विंड में से स्ट्रॉन्ग क्या है, नो है, सो हमें रिजल्ट मिलेगा नो। So this is the final solution, and by using this information gain values, or by using this attribute measure we can find out the, or we can create the decision tree. Okay, so the next part is what, Gini index. So by using this Gini index also we can create the decision tree. Okay, so here in this part we only discuss about the information gain and entropy. Okay,